are after electronic media and internet. We usually trust Google for any references. We hardly refer any book, and most of us lost the habit of reading books. But who has very important role in our life? Okay, the first lesson of your book Golden Race, the story of a book, that is the book that saves the earth. We really did not see the importance of book in our life. We marginalized it. But let's see how important was the book. This is a drama. Here are some characters like a historian, great and mighty think tank, Sergeant O, Apprentice Noodle, and the Captain Omega, Lieutenant Iota, and also offstage voice. Offstage voice means the voice that you can hear but no character is present on the stage. स्टेज पर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, उसका आवाज़ सुनाई देता है, उसको ऑफ स्टेज वॉइस कहते हैं. So this book says the story says the book that saved the earth book इसे बचाया है. So it means there was an attack from the Martians, but a simple book that spoiled the plan of Martians attacking the earth. अर्थ को अटैक करने का Martians का प्लान को स्पॉइल किया है, नष्ट कर दिया है बुक. How it happened? ये कैसे हुआ है? Let's read. Okay, you take your book, अपना किताब ले लो, and read along with me. मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. While I read, you to read from your textbook. मैं पढ़ता हूँ तब आप भी अपना किताब में से पढ़ेंगे. Hear me and look at your book. मुझे सुनकर आप किताब के अंदर देखेंगे. Time, the 25th century. और ये स्टोरी जहाँ हो रहा है वो 25th century में है. And a place, the Museum of Ancient History, Department of 20th century on the planet Earth. ये 25th century में एक ऐसे म्यूजियम का जो डिपार्टमेंट है, a particular department that is for 20th century के लिए, यानी 20th century में how was the earth कैसे था, and all about earth के बारे में सब कुछ that you can get from here, यहाँ से आपको मिल जाते हैं. Before rise of the curtain का rise से पहले spotlight shines on historian. एक historian बैठा है, उसके ऊपर ये spotlight प्रकाशित हो जाता है. It means you can see one historian sitting on the side of a stage, who is sitting at the table down right. उनके टेबल पर बैठा है, and on which is a movie projector. एक टेबल पर है बैठा है, उसी टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है. You see, he was sitting at a table. Who is sitting at a table? At a table. देखिए, at a table. He was not sitting on the table. वो टेबल के ऊपर बैठ नहीं रहा था. Was sitting at a table. At मतलब at a table का मतलब है वो बैठा है, उसके सामने टेबल है. Means you sit at dining table for dinner. आप डिनर के लिए कहाँ बैठते हैं? डाइनिंग टेबल पर. उसका मतलब यू आर नॉट सिटिंग ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बैठ नहीं रहे हैं. इज टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू. टेबल आपके सामने है. सो इधर भी आप देखेंगे द हिस्टोरियन इज सिटिंग. हिस्टोरियन बैठ रहा है. कहाँ बैठा है? एट द टेबल. टेबल पर बैठा है. इट मीन्स टेबल इज इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके सामने टेबल है.
And on the table के ऊपर, okay, table के ऊपर that you can see projector. A sign on easel beside her reads, यानी हिस्टोरियन है वो बैठा है, उसके पास में एक ईजल है, उस पर एक साइन बोर्ड है. ईजल आप जानते हैं ड्राइंग वगैरह करने के लिए एक स्टैंड होता है, उसको कहते हैं ईजल. वो ईजल पर एक साइन बोर्ड, इसमें लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. तो ये साइन बोर्ड पर लिखा है म्यूजियम ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. She stands and bow to audience. The historian stood up, historian खड़ी हो गई, and she bowed before the audience. जो ये देखने के लिए जो श्रोता लोग हैं उसके सामने उसने बाव किया है, नमस्कार किया है. Historian, good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department. Curiosities of the good old far off 20th century. And this historian welcomes, historian welcome कर रहा है, स्वागत कर रहा है those who are hearing her, उसको सुनने वालों सबको welcome करके कहते हैं welcoming them all to the Museum of Ancient History. पुराने हिस्ट्री का जो म्यूजियम है उसी की ओर वो वेलकम करते हैं. And this department is of curiosities of the old good old far off 20th century. Okay. So ये उस जो वेलकम करते हैं ऐसे जगह को वेलकम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में है जहाँ you can get the curiosity of old good old far off 20th century. You see now it is happening 21st century. उसी वक्त 20th century के बारे में 20th century के बारे में बता रहे हैं. उसी वक्त का जो नॉलेज है, क्यूरियसिटीज हैं, जो स्ट्रेंज चीज़ें हैं, दैट यू कैन सी इन दिस म्यूजियम. इसी म्यूजियम में वो चीज़ आप देख सकते हैं. व्हाट वाज दिस क्यूरियोसिटी ऑफ दैट टाइम, उसी वक्त का क्यूरियोसिटीज क्या थे, यानी क्यूरियोसिटी मीन्स स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स. आप जानते हैं आज हम पुराने कोई भी चीज़ देखते हैं हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज लगता है, अजीब से लगता है, अद्भुत लगता है. ऐसे अद्भुत चीज़ें हैं जो 25th सेंचुरी का अद्भुत चीज़ है दैट यू कैन सी इन दिस म्यूजियम में आप देख सकते हैं. द 20th century was often called the era of the book. 20th century को कहा करते थे era of the book, किताबों का जमाना. In those days there were books about everything. उन दिनों में there were books for everything. हर चीज के लिए किताब हुआ करते थे. From antiques to Zulus. एंटिटी से लेकर मंगोलियन कहते हैं, इसी तरह जो एंट को खाने वाले जानवर हैं वो से लेकर जुलूस एक अफ्रीकन ट्राइब है. मतलब प्रत्येक चीज़ पर देयर वर बुक्स अवेलेबल, बुक्स उपलब्ध हैं. बुक्स taught people how to and when to and where to and why to. Means there were books for our subject and these books taught the people how to, कैसे करना है, and when to, कब करना है, and where to, कहाँ करना है, and why to, क्यों करना है. तो सारे हर तरीके का बात ये किताब में से लोगों को मिलते थे. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. तो किताब ऐसे हुआ करते थे illustrated, उसके अंदर चित्र के द्वारा बातों को दर्शाए जाते थे. And educated, the book educated people, यानी उसके अंदर नॉलेज हुआ करते थे. And punctuated means this was separated. पंक्चुएशन आप जानते हैं, पंक्चुएशन मार्क हैं, पंक्चुएट करते हैं अलग अलग मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए. वाक्यों का बीच में हम कुछ चिन्ह लगाते हैं, उसको पंक्चुएशन मार्क करते हैं. यानी किताब पंक्चुएटेड थे, यानी बात स्पष्ट थे. एंड इवन डेकोरेटेड, यानी किताब सजाया हुआ था. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ.
ये सबसे ऊपर द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, सबसे बहुत अजीब बात ये था ये दिस बुक सेव्ड अर्थ को बचा लिया एक बार। You haven't heard about the Martian invasion of 2040. 2040 में मार्शियन इन्वेशन हुआ था। मार्स से लोग पृथ्वी को आक्रमण करने के लिए आया था, उसके बारे में क्या आप सुना है? Test us. What do they teach children nowadays? What do they teach children nowadays? इन दिनों में ये बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Well, the invasion never really happened because a single book stopped it. Okay, you heard about the Martian invasion that took place in 2040 में Martian invasion हुआ था। तो what do they teach children nowadays? वास्तव में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Well, आप जानते हैं, invasion never really happened. Even though we told, हमने अभी कहा था, invasion हुआ है, really it did not happen. ये हुआ नहीं. And invasion never really happened because a single book stopped it. एक single book, एक मात्र एक book इसी invasion को रोक लिया. What was the book, you ask? Then you may ask, what was that book? What was that book? Stop the invasion of Martians. Martian invasion को रोकने वाले ये किताब कौन सा था? ये नोबेल एनसाइक्लोपीडिया, एक एनसाइक्लोपीडिया। ये टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल, एक ऐसी टॉम बुक है अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल और रॉकेट के बारे में कोई किताब। ये सीक्रेट फाइल फ्रॉम अदर स्पेस, नहीं तो अदर स्पेस का आउटर स्पेस का बारे में जो कोई फाइल है। नो, इट वॉज नन ऑफ दोस, नहीं, ऐसे कोई भी किताब नहीं था। The book that stopped the invasion of the Martian was not any fiction or any book on missiles or rocket or space science. Nothing. ऐसा कुछ भी नहीं था. And it was, but here, let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago in 2040. But it was. ऐसे कोई किताब नहीं था, पर ये ऐसे किताब था। वो कौन सा है आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप को मैं अभी ऑन कर लेता हूँ। दिस हेल्प यू और इट टेक्स यू टू द टाइम दैट इज 2040। यू कैन सी व्हाट हैपेंड देन देयर, उधर क्या हुआ था वो आप उसके अंदर आप देखेंगे। And show you what happened many centuries ago in 2040. 2040 में कई centuries पहले है, उधर क्या हुआ था आपके हिस्टोरिस्कोप के माध्यम से आप देखेंगे। She turned on projector, ये बोलकर the historian turned on the projector, प्रोजेक्टर को चालू कर दिया and points its left, उसका लेफ्ट की ओर इशारा किया। Spotlight on historian goes out. अब तक हिस्टोरियन she was narrating the incident को narrate कर रहे थे। The light was on her. Now the spotlight on the historian gone. हिस्टोरियन को ऊपर जो लाइट दिख रहे थे वो अभी चला गया। Now the historioscope is on and you can see some scene through this projector. इस प्रोजेक्टर से कुछ आप सीन कुछ देख सकते हैं। And the spotlight on the historian goes out and come up, down, left on think tank. We sit on a raised box. अभी आपको स्टेज पर दिखाई देता है raised box, एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, उसके ऊपर सिटिंग थिंक टैंक, यानी लेफ्ट साइड में है। आपको अभी हिस्टोरियन राइट साइड में था, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज उसके ऊपर से लाइट तो चला गया। अभी लेफ्ट साइड में थिंक टैंक को दिखाई देता है। He was sitting on a raised box
बड़े का ऊंचा कर रखा है, एक बॉक्स के ऊपर बैठा है, आर्म्स फोल्ड, हाथ बांधे हुए। He has a huge egg-shaped Henry, and he wears a long robe decorated with stars and a circle. He has a huge egg-shaped Henry. उसका जो सिर है ऐसे था बड़े एग के समान, अंडाकार का बड़ा सा एक सिर, and he wears long robe decorated with stars and circles. ऐसे बड़ा से robe means cloth पर रखा था, decorated with stars and circles, स्टार से सजाया हुआ बड़े से एक कपड़ा वो पहन रखा था। Apprentice Noodle stands beside him. उसके पास में खड़ा था apprentice Noodle. Apprentice का मतलब है कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रैक्टिस में ही to get knowledge or work का ज्ञान पाने के लिए कुछ काम करते हैं, यानी प्रैक्टिस करने वाला। ऐसे प्रैक्टिस करने वाला नूडल उसके पास में है। And an elaborate switchboard, a sign on, and his reads. Apprentice Noodle stand beside him. Apprentice Noodle great think tank के पास में खड़ा है। And an elaborate switchboard, वो कहाँ पर खड़ा है? At an elaborate switchboard. आप देखिए पहले हम देखा था at the table, इसी तरह at switchboard यानी switchboard पर। It means he was standing by the switchboard. switchboard के पास वो खड़ा था। It means he was operating that one. A sign on the easel reads. easel पर जो साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड में इसे लिखा है Mars Space Control Great and Mighty Think Tank Commander in Chief. Bow low before entering. ये ईसल पर नोटिस लिखा रखा है, यानी ये नोटिस बोर्ड है, उसमें लिखा रखा है Mars Space Control Great and Mighty Think Tank Commander in Chief. फिर उनके सामने आने से पहले क्या है? Bow low before entering. प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना है? Bow low, नीचे झुकना है, यानी आपको दंडवत करना है। Noodle boy, Noodle दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। O great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? Okay, Noodle is an apprentice, वो प्रैक्टिस करने वाला है। वो उसके सामने आकर उसका आदेश, क्या आदेश है करके पूछ रहे हैं। But before asking, he had to greet him. उसको ग्रीट करना था। He greeted him, उसको ग्रीट किया। कैसे ग्रीट किया? Great and mighty think tank, महान और शक्तिमान think tank, most powerful and intelligent, सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान, creature of the whole universe, पूरी ब्रह्मांड में से सबसे बुद्धिमान शक्तिशाली कमांडर माइटी थिंक टैंक करके उसको क्रिएट किया है। फिर पूछे व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या है, तुम्हारा आदेश क्या है। थिंक टैंक पीविश में से उसमें इरिटेशन हुआ है कुछ, अभी यहाँ जानती है इरिटेट हुआ है, मीन्स इरिटेटिंगली वो इरिटेट होकर कहा You left out part of my salutation. मेरा salutation है, मुझे कैसे तुम्हें ग्रीट करना था, उसमें what are the words should be used, कौन सा वर्ड्स इस्तेमाल करना था, वो वर्ड्स you did not use, वो वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं किया। You left out part of my salutation. मेरे salutation का सल्यूट करने का जो वर्डों में से कुछ शब्द तूने छोड़ दिया। Apprentice Noodle, go over the whole things again. इसलिए तू एक काम करो, go over the whole things again. It means you start from the very beginning, शुरू से, very first, शुरू से आप वापस ये ग्रीट करो। Noodle, it shall be done, sir. बिल्कुल, आपका आदेश वैसे ही किया जाएगा। In a sing song, जैसे when teachers come
into your class, आपका क्लास में टीचर्स आते हैं, how you greet your teacher, good morning, good afternoon, like how you greet. So oftenly you sing like a song जैसे आप sing करते हैं, good morning. Now by the way, in the sing song में इसने कहा, oh great and mighty think time, roll our mass and had to moves, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of the breath. यानी इतना ही एक श्वास में बढ़कर श्वास रुक गया, आउट ऑफ ब्रेथ. व्हाट आर योर ऑर्डर्स. उसका ग्रीटिंग से सारे वर्ड्स उसने एक श्वास में कहा. उसके बाद कहते हैं व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे आदेश क्या है. थिंक टाइम, दैट इज बेटर नोडल. हाँ, अभी तूने सही किया नोडल. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our general rulership. What do they call it again? I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet. I wish or I want, मुझे चाहिए to be placed in communication, उसके एक कम्युनिकेशन का संपर्क करना है, वार्तालाप करना है, कम्युनिकेशन करना है विद अवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट. जो रेडिकुलस है ये तुझ सिली लिटिल प्लैनेट है, उसी प्लैनेट की ओर द ग्रुप ऑफ मार्शियंस वेंट. मार्शियन का एक ग्रुप तो चला गया है वो प्रोब करने के लिए. प्रोब मीन्स जांचना मतलब है. So here this group of Martians went to these ridiculous planets, ridiculous inside of Martians. Martians का especially the site of the great think tank. Great think tank का नज़र में एक ridiculous है, silly planet है. उसे planet की ओर गया, spaceship में गया, space manned space probe है, उन लोगों से संपर्क करना है. तो ये लोग क्यों गया है. And we are going to put under our general rulership. हम हमारे जनरल रूलरशिप के अंदर अधीन लाने के लिए इसको, इसी प्लैनेट को भी we are from मार्स में से हैं, and we are going to bring the earth also under our rulership. मेरा रूलरशिप में है, मेरा अधिकार के अंदर उसी प्लैनेट यानी अर्थ नाम का प्लैनेट को भी लेके आ रहा हूँ. And that is very silly for me. That is very ridiculous for me. Really ridiculous. एक बिल्कुल silly एक planet है. And what do they call it again? तो ये ridiculous planet है. I forgot the name of that planet. उसे planet का नाम मैंने भूल गया है. What is that name? वो नाम क्या है? नोडल्स याद दिलाते हैं. Earth. You are intelligence. ओ तुम बुद्धिमान, तुम भूल गया है. But the name of that planet is Earth. Think the Earth, of course. बिल्कुल Earth नाम है. You see how insignificant the place is. आप देखो कितना insignificant है, unimportant है वो place. Why did I forget the name of that planet? That ridiculous planet. वो मैं इसको उसी planet को ridiculous planet कहता हूँ, silly planet कहता हूँ, वही तुच्छ मानता हूँ. And I did not care about that planet, and even I did not care to remember the name of that planet. उसे planet का नाम याद रखना तक मैं उचित नहीं समझा, because that is very silly planet. You see how insignificant है, कितना मामूली है planet. इसी वजह से I did not remember the name. मैं उसका परवाह किया नहीं, इसलिए नाम भी मुझे याद नहीं. But first something important. But first पहली बात कुछ important चीज़ है. My mirror. I wish to cancel my mirror. तो कुछ शुरू करने से पहले मुझे काम करना है. I want to cancel my mirror. आप जानते हैं before starting any new work, कुछ नया काम करने से पहले आप लोग शुभ मुहूर्त में देखते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ पूजा करते हैं. इसी तरह मार्शियन का जो ये रोलर हैं वो कुछ अच्छे काम करने से पहले क्या करते हैं, ही कंसल्ट हिज मिरर, अपना मिरर का कंसल्ट करते थे. नहीं तो आप लोग कुछ अच्छे काम करने से पहले पंडित जी से मिलते हैं. इसी तरह ये अपने मिरर से
मिलकर उससे बात करते थे। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर को कंसल्ट करना चाहता हूँ बिफोर डूइंग एनी वर्क, कुछ काम करने से पहले। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैज थिंक टैंक मिरर, ये कहकर हाँ ये किया जाएगा बोलकर एक मिरर लेकर थिंक टैंक को देते हैं। थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हार्ट, मिरर मेरे हाथ में जो मिरर, what is the most fantastically intellectually gifted being in the land? मिरर से पूछते हैं who is the most fantastic and intellectually, सबसे अद्भुत अद्भुत और बुद्धिमान gifted being in the land, इसी जमीन का सबसे गिफ्टेड है, यानी जो ब्लेस्ड है, गिफ्टेड मीन्स ब्लेस्ड, यानी जो सबसे अच्छा है, सबसे बुद्धिमान है, इंटेलेक्ट फैंटास्टिक, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है लैंड पर। ऑफ स्टेज वॉइस, देखो ऑफ स्टेज वॉइस मीन्स यू कैन हियर वॉइस हियर बट नो पर्सन, नो कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं, मात्र आवाज दिखाई दे रहा है। जो स्टेज के पीछे से आवाज आ रहे हैं, यू सर, थिंक टाइम, स्मैकिंग मिरर, मिरर को स्मैक करते हुए, मारते हुए, खिगर, जल्दी आंसर, खिगर नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुम जल्दी आंसर देंगे। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे पसंद नहीं है धीरे काम करने वाला मिरर, मुझे पसंद नहीं है। he admires himself in the mirror, वो मिरर के अंदर अपने आप को देखकर admire कर रहे थे, worshipped himself। there I am, देखो मिरर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। Are we Martians not handsome race? क्या हम मार्शियंस इतना सुंदर जाति नहीं है? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads। वास्तव में है, रियली वी आर मोर अट्रैक्टिव दैन द एर्थलिंग, अर्थ का जो अर्थ का जो बच्चे हैं उससे ज्यादा हैंडसम है, सुंदर है। एंड एर्थलिंग विद देयर टाइनी हेड्स, एर्थलिंग का देखो उनका जो सिर है बहुत छोटा है। नाउ यू कैन सी द ग्रेट थिंक टैंक सिटिंग इज ए बलून टाइप, बलून के जैसे एक शेप, एक का समान बड़ा से एक सिर है। तो इधर वो कहते हैं यात्री का जो सिर है बहुत छोटा है, हमारा सिर बहुत बड़ा है। सो वी आर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम है दैन द एर्थलिंग से ही ज़्यादा हैंडसम है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। फिर नूडल से कहते हैं थिंक टैंक, कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, तुम एक्सरसाइज करते जाओ, कीप ऑन, को भी काम लगातार करते जाओ, उसके लिए बोलते हैं कीप ऑन। कीप ऑन फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बोलेंगे, कीप ऑन राइटिंग, लिखते जाना, कीप ऑन रनिंग, दौड़ते जाना, यानी काम करते रहना, कीप ऑन लर्निंग, पढ़ते जाना, कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते जाओ, एंड योर माइंड, आपका माइंड का तुम एक्सरसाइज देते जाओ, एंड समडे, किसी दिन, यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, मेरा बलून ब्रेन ये जो तुम्हारा भी बड़ा सा ये ब्रेन हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम्हारे माइंड को तो एक्सरसाइज करते जाओ। नोटिंग, ओह आई होप सो, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, माइटी थिंक है, मैं भी यही चाहता हूँ, थिंक टैंक। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रो, ये काम करो, आई हैव कंसल्टेड माई मिरर, मेरा पंडित जी से मैंने मिल लिया, उससे मैंने बात किया है, अभी मेरा काम अभी शुरू कर सकते हैं। यू डू वन थिंग, ये काम करो, यू कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोप को कॉन्टैक्ट करो। आई वांट टू इन्वाइट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मैथ कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मैथ, या लंब ऑफ मैथ है, मैथ का एक कीचड़ का लंब है, एक टुकड़ा है कोलार तीर्थ नाम का, उसको मैं कब्जे में लेना चाहता हूँ बिफोर लंच, आज लंच से पहले। नोटिंग, ये शैल बी द आंसर, हाँ बिल्कुल ये किया जाएगा। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड में कुछ लेवर्स है वो एडजस्ट कर रहे हैं आगे पीछे करके। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड
as the curtain opens. जो कर्टन वैसे करते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बजेस बीप्स की आवाज़ सुनाई देते हैं.